Hello students, this is our second part from chapter number 2, work of Sant. Sant Eknath. See, he is a Sant Eknath. Sant Eknath carried on the work started by Sant Namdev and Sant Jnaneshwar. He is the Sant who carried the work of Sant Namdev and Sant Jnaneshwar. He lived in Patan. Where he lived in Patan. He preached that the way to reach God was through devotion. उन्होंने लोगों को ये बताया कि गॉड के करीब जाने का एक ही रास्ता है, that was a भक्ति मार्ग. He wrote numerous religious songs. उन्होंने बहुत सारे religious songs लिखे, अभंग्स, ओवीज and बरूद्स. In these religious songs, abhangs, ovis and bharuds was included. Bharud means giving a message in a funny way, in a funny song. His advice to the people was not to accept any distinction of the high and low. His advice only to the people that not to accept any distinction, मतलब not to accept any differences of high and low. He made friends with the poor and the downtrodden and taught them devotion to God. He usually made friends with the poor and the downtrodden. Downtrodden means scheduled caste, lower class people. Okay, he made the friends with the poor people or the lower class people and taught them devotion to God. मतलब God के लिए कितना मतलब प्यार होना चाहिए, गॉड की तरफ झुकाव होना चाहिए, वो उन्होंने उनको सिखाया. His love extended even to the dumb animals. जो उनका प्यार था वो सिर्फ जीवित इंसानों के लिए नहीं, ऐसे एनिमल्स जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए भी था. He encouraged the people to love all living beings and practice what he preached. He encouraged the people that to love all living beings. इधर मतलब people, human, animals, all living beings, and practice what he preached. What he preached, that not to accept any distinction of high and low. One day he was going to the river Godavari for a bath. It was noon and very hot. The sand bed along the riverside was very hot too. Means one day he was going to the river Godavari for a bath. It was a very hot afternoon and the sand in this hot afternoon was very hot too. He heard the crying of a poor child sitting on the hot sand. Eknath looked around and saw the child. At that time he heard the crying of a poor child who was sitting on the hot sand. He looked around and saw the child. He rushed to him and looked around for the child's parents. मीन्स उन्होंने उसको उठाया और आसपास देखने लगे कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं. ही पिक्ड अप द चाइल्ड इन हिज आर्म. ही पिक्ड दैट चाइल्ड इन हिज आर्म्स. ही वाइप्ड हिज टीयर्स एंड रीच्ड हिज होम. मतलब उन्होंने उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे और उसे अपने साथ घर लेकर आ गए. इन दिस वे बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल, मतलब इनके इस पर्सनल एग्जाम्पल से भी एकनाथ इम्प्रेस द मैसेज ऑफ लव एंड इक्वालिटी ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल. मतलब उन्होंने अपने मैसेज था लव और इक्वालिटी का लोगों पे छाप छोड़ के चले गए अपने इस इंसिडेंट से. संत तुकाराम. ही इज़ अ संत तुकाराम. Two great saints, Tukaram and Ramdas, lived in Shivaji's time. These two saints is from the Shivaji's time. Who are they? Sant Ramdas and Sant Tukaram. Tukaram came from Dehu, near Pune. He was from Dehu, near Pune. He owned a farm and also grocery shop. He has the farm and means he owned and he had the farm and grocery shop too. His forefather used to lend money to the needy people. जो उनके बाप दादा थे, they were used to, मतलब उनके जो बाप दादा थे मतलब लोगों को पैसे दिया करते थे. मतलब उधार या आप लोन कह सकते हो, उनको दिया करते थे जो कि ज़रूरतमंद हुआ करते थे. उन लोगों को उनके बाप दादा पैसे दिया करते थे. But Tukaram drowned in the river Indrayani.
ऑल द रिकॉर्ड ऑफ लोन पेपर ही हैड दस गिविंग रिलीफ टू मैनी। मतलब उन्होंने क्या किया, उन जो सारे जो लोन पेपर्स थे जिसमें ये लिखा था कि उनके मतलब फोर फादर ने किन किन को लोन दिए हैं, कितना लोन दिए हैं, उन्होंने क्या किया, सारा जो पेपर था वो किस दरिया में, इंद्रियानी दरिया में डुबो दिया, जिसकी वजह से बहुत सारों को एक रिलीफ हुआ, एक सुकून हुआ कि अब किसी को कभी कोई पैसा देने नहीं पड़ेंगे। ही वुड गो टू द नेबरिंग हिल एंड सिंग सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ गॉड विट्ठल। जो गॉड विट्ठल है उनकी की प्रशंसा में, उनके लिए उन्होंने करीब के ही हिल पे जाके बहुत सारे गाने गाए थे। On the 11th day, Ekadashi of the month of Ashad and Kartik, he would go to Pandharpur. He wrote devotion song abhangs and performed kirtans. He usually wrote devotional songs, abhangs and performed kirtan. मतलब जो भजन होते हैं गॉड के लिए जो गाया जाता है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग लिखे थे। 1000 flock to listen to him, मतलब हज़ारों के लोग उनको सुनते थे, उनकी सुनने आते थे। शिवाजी महाराज also attended his kirtan. Even Shivaji, he himself attended his kirtan. Sant Tukaram preached to the people about the virtues ऑफ पिटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड। वो लोगों को क्या सिखाते थे, किस बारे में बताते थे, अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ पिटी, मतलब किसी के साथ सिंपैथी होनी चाहिए, उनके लिए मर्सी होना चाहिए, ऐसे वैल्यूज़ उनको सिखाते थे कि मतलब दूसरों को माफ़ करना चाहिए और मन की शांति, इस तरीके का मैसेज और इस तरीके की बातें लोगों को बताते थे। He also gave them a message of equality. He also gave message of equality like any means all other saint. He alone is a saint and God dwells with him who call the weak and the downtrodden as his own. Dwells means settle down. Okay, downtrodden means वही जो पिछड़ी जात के जैसे दलित वगैरह होते हैं वो, तो वही एक सच्चा संत है जो गॉड के साथ है, और वही गॉड के साथ है जो कमज़ोर और जो पिछड़े हुए लोग होते हैं उन लोगों को अपना समझता है। मतलब गॉड उन्हीं लोगों के साथ होता है जो दूसरे कमज़ोर लोग और लोगों को अपना समझता है। He impressed his truth on the minds of the people, मतलब उन्होंने लोगों के दिमाग पे अपनी छाप छोड़ के गए। He made them think. People accepted him as a great religious leader and showered their praise ऑन हिम, मतलब उन्होंने इस तरीके की बात की कि ऐसे मतलब वही सच्चा इंसान है, वही सच्चा संत है जो, और वही गॉड के करीब है जो कमज़ोर लोगों को अपना समझता हो, जो पिछड़े हुए लोगों को अपना समझता हो। ऐसी बातें सुन के बहुत सारे लोगों ने उन्हें अपना रिलीजियस लीडर मान लिया और अपनी जो दुआएं हैं उनके ऊपर निछावर करने लगे। ही इवन टुडे ऑल ओवर महाराष्ट्र वी हियर पीपल प्रोक्लेमिंग मीन्स डिक्लेयर, घोषणा, ज्ञानबा तुकाराम द नेम्स ऑफ द टू ग्रेट सेंट, मतलब आज भी लोगों महाराष्ट्र में कई जगह पे ये दो नाम ज्ञानबा और तुकाराम हमें सुनाई देते हैं। संत ज्ञानेश्वर इज़ कॉल्ड ज्ञानबा ऑल्सो, तो संत ज्ञानेश्वर को ज्ञानबा भी कहा जाता था। इवन टुडे तुकाराम गथा इज़ रीड इन एवरी हाउस होल्ड, और आज भी बहुत सारे घरों में तुकाराम गथा, तुकाराम की जो गथा थी वो आज भी बहुत सारे जगह पे पढ़ी जाती है। संत रामदास at the same time the hills and the valleys of Maharashtra were filled with the echoes of Jai Jai Raghuveer Samarth, glory be to the great Rama, an invocation constantly on the lips of the great saint रामदास। मतलब उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के ज़ुबान पे मतलब और संत रामदास की भी ज़बान पे एक ही आवाज़ हमेशा पूरे मतलब गूंजती थी पूरे हिल में, पूरे वैलीज़ में, क्या, जय जय रघुवीर समर्थ। रामदास वॉज बॉर्न एट जाम ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी इन मराठवाड़ी, मतलब उनकी जो पैदाइश है, ही वॉज बॉर्न एट जाम ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। हिज बर्थडे फॉल्स ऑन रामनवमी, द डे ऑन विच द ग्रेट हीरो रामा वॉज बॉर्न, मतलब उनका जन्मदिन भी उसी दिन आता है जब भगवान राम का जन्म हुआ था।
Narayan was his real name. His Ramdas real name was Narayan, but he preferred to call himself Ramdas. But his real name was Narayan, but he was preferred to be called as Ramdas, a servant of Ram. Through uh, through his great book Das Bodh, he taught man the way of good life. मीन्स अपनी बुक दास बोध के ज़रिए उन्होंने लोगों को अच्छी लाइफ बिताने की बातें सिखाई. थ्रू हिज मनाचे श्लोक स्टेंसा एड्रेस्ड टू द माइंड, मतलब जो उनकी जो एक श्लोक थी जिसका नाम था मनाचे श्लोक. He gave people lesson in good thought and good conduct. The popularization the worship of strength. He raised the temples of Hanuman. मतलब जो to popularize the worship of strength, मतलब वर्शिप ऑफ मतलब जो ताकत की पूजा करना, मतलब लोगों में फेमस कराया, लोकप्रिय कराया कि इस वजह से उन्होंने भगवान हनुमान के टेम्पल बनवाए हर जगह, और जो कि हनुमान जो कि गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनके मंदिर जो है उन्होंने हर जगह बनवाए. ही एग्जॉर्टेड पीपल टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टोल्ड देम टू द पावर दैट रिसाइड्स इन द यूनाइटेड पीपल. उन्होंने मतलब उन्होंने लोगों को ये बताया कि आपस में रहने से कितना मतलब ताकत होती है. ही इनकरेजेस पीपल टू बी स्ट्रॉन्ग, मतलब उन्होंने लोगों को हिम्मत दी कि अब बहादुर रहो, और जब तक तुम साथ रहोगे तुम्हारी पावर, तुम्हारी ताकत बंधी रहेगी, तुम स्ट्रॉन्ग रहोगे. ही टॉट देम टू ऑर्गेनाइज themselves and find against injustice. He taught them organize themselves, मतलब अपने आप को एक नए तरीके से जीने का सिखाई. एंड मतलब और इनजस्टिस मतलब जो नाइंसाफ़ी होती है उसके अगेंस्ट उनको लड़ना भी सिखाया. दिस गेव करेज टू द पीपल, और इन सारी चीज़ों से लोगों में बहुत ही हिम्मत आई. द work of saint brought about a work awakening among the people. All these work by the saint was the great awakening among the people. मतलब इन सारे चीज़ों से, इन सारे जो संत थे उनके काम की वजह से लोगों में जो सोए हुए लोग थे वो जाग गए, जो अंधविश्वास पे चलते थे वो लोग जाग गए. रिलीजन वंस अगेन बिकम अ थिंग टू बी रिस्पेक्टेड एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज बॉर्न. मतलब रिलीजन वंस अगेन मतलब एक बार फिर जो धर्म है उसकी इज्जत की जाने लगी. पीपल रीगेन देयर लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और उस सीख की वजह से, उस मतलब बिलीफ की वजह से लोगों का जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था वो फिर से लौट आया. उन्होंने वापस से उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर पाया. दिस ग्रेट अवेकनिंग अमंग द पीपल brought about by the saint helped शिवाजी in his fight for स्वराज. तो इस तरीके के जो काम थे जिससे लोगों को जागरूक किया गया, जो कि संत ने किया था बहुत सारे, उस वजह से शिवाजी को भी जो स्वराज था उसकी लड़ाई जो थी उसमें हेल्प मिली. थैंक यू ऑल. होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक.